Good evening, Rajeshwari. How are you doing? I don't think so. I think she wants to join now. Good evening, everyone. Good evening, Sakshi. Good evening, Pranjal. How are you doing? Good evening, sir. All well? Yes, sir. Okay, great. Wonderful. So we'll shortly start. We're just waiting for others to join in. Meanwhile, you could quickly tell me, did I give you some homework the other day? Yesterday, you had something to do? Yes, sir. What was that? Sir, you did the tense, present continuous, or present perfect, or simple past, or simple future. Oh, you had to make sentences on these tenses, is it? Yes, sir. Okay, great. So I think we can quickly start. So Sakshi, you have made certain sentences. Yes, sir. Okay, so I'll listen to you. I'll just quickly greet Rajeshwari because I see her there. Good evening, Rajeshwari. How are you doing? Good evening, sir. I'm doing much better now. Okay, Thanks for asking. How are you? I'm perfectly fine, thank you. And my best wishes to you for your health, that you keep healthy and you stay fit. Thank you, sir. All right, thank you. Okay, so Rajeshwari, I don't know if you were following the track of our courses, our classes. So today we are going Yes, to. sir. I am. You are doing that? Great. Yes, sir. Okay, wonderful. So today we are going to work on, we're going to revise some of the tenses. Sakshi has just spoken about them. So we're going to work on present perfect, we're going to work on present continuous, we're going to work on simple past, and finally we're going to work on simple future. Is that so, Sakshi? Yes, sir. Okay, great. So Sakshi, you can quickly tell me some of the sentences which we can start. I'll do one thing meanwhile. I'll just go back to this one. So I'll open a document meanwhile. Yeah, you can start with one of the tenses. Okay, so I think I have some space over here. So what I'll do is that I would do it in a way. Okay, so I'll just take some space to write your sentences. Yeah, you can start, Sakshi. सर मैंने वो जो होमवर्क किए थे जो आपने सन 16 कराए थे ना प्रेजेंट टेंस में Yes, yes. उसके आगे वाले किए आपने? जी 17 Okay, chaliए. So we can start from there. So not a problem. What I'll do is that I'll quickly go to the next page. Just. yes sir. Okay, so Sakshi, you are telling which one? Present continuous? This one. Okay, I can. सर Yeah. ये मुझे क्लियर नहीं दिख रहा अब बताइएगा, अब आपको क्लियर दिख रहा है? यस सर चलिए. सर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस Present continuous. तो एक बार हम फटाफट से चेक कर लेते हैं. Sarita, good evening. How are you? गुड इवनिंग सर Okay. You are keeping well? You are doing fine, Sarita? यस सर आई एम Okay. फाइन Okay, wonderful. All right. So Rajeshwari, just to check with you, if you know, if you remember, present continuous means something that is happening in present situation and it is carrying on, it is going on, right? So, Yes, sir. any example, Rajeshwari, that you can quote for us? Sir, for example, I am doing yoga every morning. Okay. जब आप कहते हैं ना आई एम डूइंग योगा एवरी मॉर्निंग, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस तो है लेकिन वो भी चल नहीं रहा है. गॉट इट? सो आपको कहना होगा आई डू योगा एवरी मॉर्निंग. जैसे आपने एवरी मॉर्निंग लगाया तो वो बन जाता है सिंपल प्रेजेंट. Okay.
right? I do yoga every. Exactly. I do yoga. Yeah. See, so when you say Rajeshwari, I do yoga every morning, that is correct. And that is simple present tense, which means something that repeats itself every day or every time. Yeah, okay, sir. But right now we were talking about present continuous जो अभी चल रहा है, अभी हो रहा है इस क्षण. तो आपने क्या बोला? I am doing yoga. Something of this sort, right? यानी मैं अभी योगा कर रही हूँ. मैं अभी योग कर रही हूँ, right? So ये होता है present continuous. Present में वर्तमान में continue चल रहा है action. That is called that. आपका सही था sentence I am doing yoga, लेकिन आपने जैसे ही लगाया ना every morning, तो वो सेंस बदल गया. तो आपको कहना चाहिए उस केस में I do yoga every morning. Otherwise, right now I am doing yoga. Right now I am studying English. Okay, sir. Right? Okay. Yeah. Arna, good evening. How are you doing, Arna? I'm doing great. How are Okay. you? I'm doing perfectly fine. Thank you. All right. So, Arna, we are looking at present continuous tense, right? This was a little homework that I had given to you people. Let's see how many of you have done it. So, Sakshi, चलिए बताइए. मैं खाना खा रहा हूँ. I'm eating food. I am eating food. Okay, सर नेगेटिव भी बता दीजिए फटाफट से साक्षी. मैं खाना नहीं खा रहा हूँ. I'm not eating food. I'm not eating food. Very good. I am not लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा. I'm not eating food. चलिए next. साक्षी. She is reading book. Exactly. वह किताब पढ़ रही है. She is reading a book. She's reading a book. She's reading a Yes, book, sir. right? That's interesting. That's important to put. चलिए और बताइए. They are playing football. They are playing football. Exactly. Correct है एकदम. They are playing football. मैं आपके लिए लिख देता हूँ इस वाले सेंटेंस को आप सभी के लिए. So they are playing football. Perfect. चलिए आगे बढ़ते हैं. बताइए साक्षी. You are singing a song. You are singing a song. I just Yes, sir. okay. तुम गाना गा रहे हो. You Yes, sir. are singing. Singing A नहीं बोलेंगे हम अ बोलेंगे, right? You are singing a song. You are singing a Yes. song. Okay, I can see Arvaz. Good evening, Arvaz. How are you doing? Good evening, sir. How are you? All well? I'm fine. I'm fine. Okay, great. All right. We did not do these sentences yesterday. Yes, we did, but we actually did them in simple past. No. Yesterday, did we discuss these kind of sentences in our class? These sentences? No, we did not discuss. No. No, sir. Yes, sir. हमने डिस्कस तो नहीं किए थे. No, sir. नो वी डिड नॉट डिस्कस. ठीक है, तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको. ओके. सो आप बताइए अभी. आई थिंक साक्षी इज हेल्पिंग अस विद दीस वंस. अरवाज आप बताइए हाउ डू यू से तुम गाना नहीं गा रहे हो. You are not singing a song. एग्जैक्टली. यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. एंड कैन समवन टेल मी व्हाट इज आर नॉट टुगेदर? उसको हम कैसे बोल सकते हैं? आर नॉट. aren't. Very good. You aren't. You aren't. ठीक है. aren't की जगह aren't. You aren't. ठीक है. aren't नहीं बोलेंगे, aren't. You aren't. Okay. So you aren't singing a song. You aren't singing a song. तुम गाना नहीं गा रहे हो. You aren't singing a song. ठीक है. Okay. Next. राजेश्वरी आप ट्राई कीजिए. I can see Deepti. So I'll just first quickly greet her. Good evening, Deepti. How are you doing? Deepti, can you hear me? Good evening, sir. How are you I'm doing doing? fantastic, sir. Oh wow, you're doing fantastic. Such a fantastic answer. Is it raining at your place? Is it No, raining? no. It's not raining at your place? No? It's raining. It's raining at your place, Arna. No? sir. So how do you respond to that question, Deepti? No, sir, it's not raining at my place. Okay, sir. बोलिए. No, sir, it's not raining at my place. No, sir, it's not raining at my place. No, sir, it's not raining at my place. Right? No, sir, it's raining not at my place. No, sir, it's not raining at my place.
No, sir. It's not raining at my place. एग्जैक्टली, वेरी गुड, राइट। क्या मतलब है इसका दीप्ति? जहाँ मतलब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। एग्जैक्टली, नो सर, इट्स नॉट रेनिंग एट आवर प्लेस, एट माय प्लेस। हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार राजेश्वरी, हम आज काम कर रहे हैं। We are working today. We are working today. Very good. We are working today. Absolutely. We are working today. Okay. अगर आपको यही क्वेश्चन बनाना होता राजेश्वरी, आप बताइए क्या हम काम कर रहे हैं आज? Are we working today? वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, हम आर को पहले लगा देते। आर वी वर्किंग टुडे? ठीक है, क्लियर है दीप्ति, अरबाज, समझ में आ रहा है आपको? आर वी वर्किंग टुडे, क्या हम काम कर रहे हैं आज, ये हो जाता। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दीप्ति आप बताइए। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। Children यस, going to school. पक्का? Children are going to school. एग्जैक्टली, Children are going. एब्सोल्युटली, आपको आर भूलना नहीं है। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, एग्जैक्टली, दैट्स करेक्ट, राइट। मैं आपके लिए लिख देता हूँ वाला सेंटेंस, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, राइट। सो हम द लगा देंगे, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एकदम ऑलराइट। वह टीवी नहीं देख रहा है, वह टीवी नहीं देख रहा है। चलिए आई लास्ट प्रांजल। प्रांजल आप बताइए। He is watching TV. he He is not watching TV. he is not watching TV, absolutely correct, he is not watching TV। और is not को हम क्या बोल सकते हैं प्रांजल? Isn't. या एग्जैक्टली, is not को क्या बोल सकते हैं? isn't। he isn't watching TV, he isn't watching TV, वो टीवी नहीं देख रहा है, Good right? evening, sir. Good evening Krishnamanyu, how are you doing? I am fine, sir. Great. You want to ask my How are well-being? you, sir? Thank you for asking. I'm doing perfectly fine. You got late today? What happened? You got a little late today? What happened? Everything is fine? क्या है कि नहीं, homework था, अपने homework दिया था ना? वो कर रहे थे आप अभी जस्ट क्लास के पहले? नहीं सर, वो पहले से मतलब बैठ गया था, पहले शीटिंग में थे, कॉलेजिंग में थे। Okay, so आप अपने होमवर्क को ढूंढ रहे थे कहाँ रखा है, so you were just trying to search your homework, right? हाँ, Okay, चलिए। फिर मैंने उसको कॉल कर दी। Okay, okay, yes, I understand. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। He's not watching television, he's not watching TV। मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। मैं पानी में नहीं के साथ बनाता हूँ, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। चलिए आप ट्राई कीजिए कृष्णमन्यु, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। Sir, I don't drink water. वापस बोलिए। I don't drink water. आई डोंट ड्रिंक वाटर। लिख देता हूं एक बार, बाकी लोग बताएंगे सही है या नहीं है। आई डोंट ड्रिंक वाटर। चलिए हाथ रेस करिए जिन लोगों को समस्या है इस वाक्य से। आई डोंट ड्रिंक वाटर। ओहो, सभी को Drink. क्या कह रहे हैं आप? आई डोंट ड्रैंक। आप ये सारे लिख देता हूं मैं तो कृष्णमन्यु, जो आप बोल रहे हो देख लेंगे। बहुत लोगों को समस्या इन वाक्यों से। चलिए हम सुनते हैं राजेश्वरी से। राजेश्वरी आप बताइए क्या दिक्कत है? आई डोंट ड्रिंक वाटर या आई डोंट ड्रैंक वाटर, या क्या बोलना चाहिए इनको? मैं पानी नहीं पी रहा हूं। I am not drinking water. तो आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर इज द राइट आंसर। आई एम श्योर एवरीवन नोज इट। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। कृष्णमन्यु बेटा ध्यान दीजिए, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर सही उत्तर है। मैं पानी नहीं पी रहा हूं। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। समझ में आता है आपको कृष्णमन्यु? राइट। और अब चलिए, तो इस वाक्य का क्या मतलब है? एनीवन? आई डोंट ड्रिंक वाटर। आई डोंट ड्रिंक वाटर। मैं पानी नहीं पीता। हाँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ। आई डोंट ड्रिंक वाटर। मैं सुबह सुबह पानी नहीं पीता हूँ। मैं आई डोंट नो, मैं लेमन टी पीता हूँ या मैं आई डोंट नो कुछ और पीता हूँ, बट आई डोंट ड्रिंक वाटर। मैं पानी नहीं पीता हूँ।
ये तो बिल्कुल नहीं बैठेगा कृष्णमन्यु, आई डोंट ड्रैंक वाटर, ये सही अंग्रेजी नहीं है, राइट? सो वो गड़बड़ था, उसको हटा दिया हमने। इसको क्या लगता है कि कुछ दिक्कत है? सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? सर मेरे को वो लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है। आपको लग गया था ना कुछ गड़बड़ है? हाँ। हाँ, इसका मतलब आपके दिमाग में अभी समझ में आने लग गया है कि कुछ गड़बड़ है, बट अब धीरे धीरे या सो अब गड़बड़ समझ में आने लग गई है आपको, तो और उसको दुरुस्त करना है, उसको और करेक्ट करना है, यू हैव टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, राइट? सो द राइट सेंटेंसेस, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा हूं। आप मान लीजिए स्टील का ग्लास था, अंदर क्या था मुझे पता नहीं था, तो आप कुछ पी रहे थे, मैंने कहा व्हाट आर यू ड्रिंकिंग कृष्णमन्यु, आर यू ड्रिंकिंग वाटर? आपने कहा नो, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग सम ऑरेंज जूस, राइट? ओके, यू कैन ऑलवेज से दैट वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे घर की सफाई कर रहे हैं, अब की नहीं लगाया हमने, वे घर की सफाई कर रहे हैं। we'll check with सरिता। सरिता आप बताइए, वे घर की सफाई कर रहे हैं। या सरिता? They are cleaning the house. वेरी गुड, दे आर क्लीनिंग द हाउस, या फिर दे आर क्लीनिंग हाउस भी चल जाएगा, द लगाना चाहें तो लगाइए, तो कोई बात नहीं, दे आर क्लीनिंग द हाउस, अन्यथा दे आर क्लीनिंग हाउस। परफेक्ट। ओके, एंड आई वांट टू से समथिंग, आई सी योर हैंड रेज्ड। Not by Okay, चलिए नेक्स्ट। Are you sure we haven't done these sentences yesterday? कल हमने करे तो नहीं थे वाले वाक्य? अरबाज, are you sure? थोड़े किए थे। हाँ, मुझे तभी ऐसा लगा, I felt so कि ये मुझे जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं, और ये तो हम कल बात कर चुके थे। चलिए कोई बात नहीं, अगर करे हैं तो इसका मतलब we did till which one? Sorry, अरबाज? इस वाले को पूरा कर चुके हैं कल हम? हाँ सर। ओके, 16 तक हुआ था ये। अच्छा 16 तक हुआ था, आगे नहीं हुआ था। ठीक है ठीक है, अब Yes, मैं sir. चलिए तो एक काम करते हैं ना, बस 4-5 ही तो वाक्य बचे हैं, फटाफट से सुन लेते हैं आपसे, ये 10 से लेके 16 तक फटाफट से। चलिए अब इसमें गड़बड़ हुई तो देख लेना, फिर अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। किया है ये। साक्षी आपने 30 तक किए हुए हैं। अच्छा 30 तक किए हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ये कैसे प्रश्न पूछेंगे हम? अरबाज, तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो? अरबाज, Are you talking with me? वेरी गुड, आर यू टॉकिंग टू मी? आर यू टॉकिंग टू मी? तुम मुझसे बात कर रहे हो, राइट? आर यू टॉकिंग टू मी? किसी को डाउट इस वाले सेंटेंस में? ये क्वेश्चन है, आर यू टॉकिंग टू मी? दीप्ति, इज इट ओके? Yes, sir. ओके, आर यू You टॉकिंग? are talking to me, tone change करके बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी। एग्जैक्टली, आप टोन लेंगे तो भी बन जाएगा, अन्यथा जो अरबाज ने किया ना इन्वर्जन, आर यू टॉकिंग टू मी, वो भी ठीक है, राइट? परफेक्ट। ओके, क्विकली आगे बढ़ते हैं। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। राजेश्वरी, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। We are preparing for the exam. Very good. We are preparing for the exams. Absolutely, we are preparing for the exams. Okay, great. वह अंग्रेजी नहीं सीख रही है, वह अंग्रेजी नहीं सीख रही है। दीप्ति, Sir, she is not learning English. तो इतना आप घबराए हुए क्यों हैं? बताइए कॉन्फिडेंटली। सीखने की थोड़ी सी वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। तो सही तो बोला है आपने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बिंदास होकर बोलिए। शी इज नॉट लर्निंग, English. एब्सोल्युटली शी इजंट लर्निंग इंग्लिश। हम इज नॉट को इजंट भी कर सकते हैं, याद है आप सभी को? परफेक्ट, राइट। शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, शी इजंट लर्निंग इंग्लिश। ग्रेट। मैं साइकिल चला रहा हूं। प्रांजल, बेटा बताओ। प्रांजल, मैं साइकिल चला रहा हूं। Pranjal, can you hear me? I don't think so. She has some technical issue. Arna, आप बताइए। Yes, sir. Yeah, Arna. Yeah. The 12th one or the 13th one? The 13th one. मैं साइकिल चला रहा हूँ। I am cycling. I am cycling. Riding, to ride a cycle, right? To ride a bicycle. ये था हमारा सेंटेंस। So क्या हो जाएगा? I am, anyone? Riding.
या Riding. आई एम राइडिंग अ बाइसिकल। याद है कल हमने सीखा था जिस चीज के ऊपर हम बैठ के चलाते हैं, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे साइकिल हो, तो उसको राइड करते हैं। और आपको याद होगा ड्राइव हम किस चीज को करते हैं जिसमें हम बैठ जाते हैं, कार हो गई, बस हो गई, एग्जैक्टली कार हो गई, बस हो गई, तो हमें ध्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, फिर आगे सेंटेंस देखेंगे। वे नई फिल्म देख रहे हैं। आई विल आस्क कृष्णमन्यु। Yes, sir. हाँ बताइए, वे नई फिल्म देख रहे हैं। हाँ, सो अपने वे का मतलब दे बताइए, दे के दे आर, वेरी गुड, दे आर न्यू। नहीं, देखने की क्रिया क्या होती है? वॉच, वॉच, हाँ सही सर। वॉच दे आर वॉच। नहीं, पर वॉच नहीं बोलना बेटा, वॉच के साथ आईएनजी लगाओ ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो वॉचिंग वॉचिंग दे आर वॉचिंग। क्या देख रहे हैं? दे वॉचिंग अ न्यू मूवी, दे वॉचिंग अ न्यू मूवी, ठीक है, दे वॉचिंग अ न्यू मूवी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे। या साक्षी, यू वांट टू से समथिंग? क्लियर है? ओके। No, sir. नो, व्हाई नो? नहीं, clear है, अच्छा sir. क्लियर है, No ओके problem. ओके ओके ओके, चलिए ग्रेट। ओके नेक्स्ट वन, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? ये प्रश्न है। लेट मी आस्क सरिता। सरिता, किसी को आपको पूछना है क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये कैसे प्रश्न पूछोगे आप सरिता प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? Are you studying? वेरी गुड, आर यू स्टडिंग, STUDYING, आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? आर यू स्टडिंग? इसका उत्तर दीजिए सरिता, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। Yes, I am studying. वेरी गुड, यस आई एम स्टडिंग, या फिर नो आई एम नॉट स्टडिंग, एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वह रसोई में खाना बना रही है। दिस इज फॉर हुम शुड आई आस्क? लेट्स आस्क दीप्ति। दीप्ति आप बताइए, वह रसोई में खाना बना रही है। She is Making a food in kitchen. in the एग्जैक्टली, kitchen. यस, शी इज कुकिंग भी हो जाएगा आसानी से, शी इज कुकिंग इन द किचन, या फिर जो आपने बोला वो भी ठीक है, शी इज मेकिंग फूड इन द किचन, शी इज मेकिंग फूड Food in the kitchen. in the kitchen, yeah, she is preparing food, she is preparing RING food in the kitchen, ये भी ठीक है, राइट? सो शी इज यहाँ आ जाएगा, शी इज। बताइए। सर इसमें जैसे ING लगा के जो फॉर्म आती है, हाँ। आंसर भी ING में ही देना होगा क्वेश्चन अगर बिल्कुल बिल्कुल जैसे आर यू स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। बिल्कुल, देखिए बड़ा आसान सा इसका रूल है दीप्ति। तुम गाना गा रहे हो? हाँ मैं गाना गा रहा हूं। अब देखिए, अगर जब प्रश्न भी कंटिन्यूस में होगा तो उत्तर भी कंटिन्यूस में आएगा, उसका सेंस ही नहीं बैठेगा। आपको किसी ने पूछा क्या तुम गाना गा रहे हो? हाँ मैंने गाना गाया, नहीं बैठा ना। आप टेंस कभी बदल नहीं पाओगे, आपको टेंस वही रखना पड़ेगा जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया, उसी टेंस में आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है? सर जैसे हम स्कूल में बच्चों को ये करवाते हैं स्लीपिंग, हाँ। रीडिंग, एक्शन वर्ड्स, राइट। तो ये स्लीप बोलेंगे या स्लीपिंग या रीडिंग या रीड? देखिए जो एक्शन वर्ड्स हैं वो एक्टिविटीज होती हैं, स्लीपिंग, लाफिंग, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइट? वो एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है? लेकिन वो आईएनजी फॉर्म है। आपको याद है हमारा जो फोर्थ वाला फॉर्म था, ओरिजिनल वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाला फॉर्म, याद है आपको दीप्ति? तो वो हमारा फोर्थ वाला फॉर्म है। तो अब आपका प्रश्न क्या था कि हम बच्चों को सिखाते हैं स्लीपिंग, सिंगिंग, डांसिंग, तो उसको कैसे आप कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये जैसे मैंने उनको बोला रीड, हाँ तो वो रीड कर रहे हैं, तो मतलब रीड सही होगा या रीडिंग? ओके स्लीप या स्लीपिंग? ओके, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है एवरीवन। ये एक नया टॉपिक पे जाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको आइडिया नहीं है। आइडिया मैं आपको देता हूँ, इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है? जब आप किसी को ऑर्डर देते हो ना दीप्ति, तो हम उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। मैं आपका क्विकली आपको वो बता सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उस अगले इस वाले पे। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि मैं जब बच्चों को बोलती हूँ पढ़ो, देखो, सुनो, तो मैं क्या बोलूँ उनको? मैं उनको बोलूँ रीड या मैं बोलूँ रीडिंग? मैं उनको यही पूछना चाह रहे हैं आप दीप्ति?
सर मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे को एक्शन वर्ड्स कराने होते हैं हाँ बच्चों को, हाँ तो उसमें मैं बच्चों को बोलूँ रीड या रीडिंग, स्लीप स्लीपिंग, कुक कुक कुकिंग, डांस डांसिंग, ठीक तो है, क्या करेक्ट होगा? क्या करेक्ट होगा? एक्शन वर्ड्स के लिए जब हम ऑर्डर देते हैं तो उसको मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में क्या होता है कि आप सामने वाले को ऑर्डर देते हो, ऑर्डर का मतलब उसको किसी काम करने के लिए कहते हो, तो आप क्या करते हो, आप मुख्य क्रिया की का प्रयोग करते हो पर टू हटा देते हो। यू टेक द मेन वर्ब, यू रिमूव द टू एंड दैट इज व्हाट यू आस्क दिस पर्सन टू डू। उदाहरण के लिए सिंग, टॉक, गिव, एक्सप्लेन, टेल। इस तरीके से बोलना है आपको दीप्ति, आपको उस क्रिया को बोलना है। आप जब बच्चों को कहना चाह रहे हो ना कि बच्चों गाओ, सिंग, टॉक, मतलब ये ऑर्डर वाली form है। एग्जैक्टली ऑर्डर वाली फॉर्म होगी, पर आप उसके साथ प्लीज लगा सकते हो, राइट, काइंडली लगा सकते हो, काइंडली सिंग, प्लीज सिंग, ये लगा सकते हो ताकि इसको थोड़ा सॉफ्ट कर सको आप। लेकिन होता है यही वर्ड, इसमें आईएनजी नहीं आता है, यू डोंट पुट आईएनजी, राइट, इसको इंपेरेटिव बोलते हैं। ओके चलिए फटाफट से इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं जो यहाँ पे हमने लिखे हैं। ऑलराइट, मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ, यहाँ से हमने नहीं देखा था ना साक्षी, ये तो हमारा करा हुआ नहीं है। Yes, sir. हाँ यहाँ से नहीं करा। चलिए अर्णा बताइए। Yes, sir. The 17th one. Yes, the one that's over there, 17th one. I am writing an email. Okay, I am writing an email. Exactly. I am writing So should an. I do it negative? Yeah, please do it quickly. I am not writing an email. Exactly. I'm writing an email. I'm not writing an email. Absolutely. मुझे लगता है आपको लिखना तो आता है, so I would not write it for you. बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। राजेश्वरी। Children are playing in the ground. बस शुरुआत में आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी, आपने चिल्ड्रंस कर दिया, तो आपको याद होगा कि चिल्ड्रन अपने आप में ही, चिल्ड्रन अपने आप में बहुवचन है, द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो शब्द है ना CHILDREN, वो अपने आप में प्लूरल है, उसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, राइट। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, समझ में आ गया? सर यहाँ किड्स भी यूज कर सकते हैं। हाँ किड्स भी यूज कर सकते हैं, किड्स भी गलत नहीं। मैंने यही बोला, सॉरी राजेश्वरी, मैंने सर यही बोला ना शायद। हाँ, Children are playing in the ground. आपने चिल्ड्रंस आर बोला ना, चिल्ड्रंस। हाँ, children's. Okay. हाँ इसलिए इस चिल्ड्रन में इसकी ध्वनि नहीं आएगी, चिल्ड्रन सिंगुलर रखेंगे साउंड, राइट, चिल्ड्रन, राइट। सो आपने बाकी तो सही बोला आर, लेकिन आपने चिल्ड्रंस कर दिया, सो आपको ध्यान में चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, परफेक्ट। In the school. जो दीप्ति ने कहा वो भी सही है, किड्स, किड्स भी बोलते हैं, लेकिन किड्स जनरली है ना थोड़ा अपनापन के साथ होता है, किड्स, और चिल्ड्रन कोई भी बच्चे, और किड्स जनरली यू नो यू हैव अ बॉन्ड और अ कनेक्शन विद देम, तो हम उसको किड्स बोलते हैं। जब आप थोड़ा सा अपनापन दर्शाते हैं तो किड्स बोलते हैं उसको। ओके आगे हम देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वन इज हम संगीत सुन रहे हैं। आई लास्ट क्विकली टू सरिता, हम संगीत सुन रहे हैं। स्पीड पकड़िए फटाफट फटाफट। We are listening to music. वेरी गुड, वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, वी आर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। और अगर सवाल बनाए इसको सरिता, क्या हम संगीत सुन रहे हैं, क्या हो जाएगा? क्या हम संगीत सुन रहे हैं? Are we? एग्जैक्टली, आर वी लिसनिंग टू म्यूजिक, आर वी लिसनिंग टू म्यूजिक। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन बनाने में? Yes. चलिए No, sir. ओके वेरी गुड, आगे No. आगे बढ़ते हैं। तुम किताब, Sir, listening to. हाँ बताइए। हाँ, जो टू लगाया है वो थोड़ा मुझे समझ में। ओके आप पूछना चाह रहे हैं कि हम ये लिसनिंग टू म्यूजिक बोलें या लिसनिंग म्यूजिक बोलें? Yes sir. ओके तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आर यू लिसनिंग म्यूजिक, आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक? जब कभी भी हम बहुत एक्टिवली ध्यान पूर्वक तरीके से किसी चीज को सुनते हैं तो हम बोलते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक। स्पेशली म्यूजिक के साथ आता है ये, तो लिसनिंग टू म्यूजिक जो आप बहुत ध्यानपूर्ण तरीके से आप उसको सुनते हैं राजेश्वरी, तो बोलेंगे ओ आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। लेकिन आई लिसन म्यूजिक, मैं संगीत सुनती हूँ, तब इन जनरल बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व होके नहीं सुनते हो, तो हम बोलते हैं बिना टू के, राइट? Okay. That's the only difference. Yeah, perfect. Okay, moving ahead with the next one. तुम किताब पढ़ रहे हो। अरबाज।
You are reading a book. ओके, नेगेटिव कर दीजिए फटाफट से, You are not reading a book. क्वेश्चन बनाइए, Are you reading a book? नेगेटिव का क्वेश्चन बनाइए, Aren't you? हाँ, Aren't you reading a book? वेरी गुड, aren't you reading a book, aren't you reading a book, राइट, aren't you reading a book, तो कैसे होगा वो सब नेगेटिव, रीडिंग द बुक भी लगा, रीडिंग द बुक। देखिए द बुक करेंगे ना आप दीप्ति, तो आपको स्पेसिफिक किताब की बात करें, तुम वो वाली किताब पढ़ रहे हो क्या, कोई जनरल किताब है, कोई एक किताब है, तो हम बोलेंगे अ बुक, ठीक है। अ बुक और द बुक में क्या फर्क होता है दीप्ति, द बुक होता है वो वाली किताब, स्पेसिफिक किताब, तुम वो किताब पढ़ रहे हो क्या, तुम वो किताब पढ़ रहे हो क्या, तब तो द बुक, लेकिन तुम किताब पढ़ रहे हो क्या, कोई भी किताब, तो अ बुक, राइट। ओके, तो अभी जो आखिरी क्वेश्चन बनाया है अरबाज ने कि आंट यू रीडिंग अ बुक, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो क्या, मुझे लगा तुम किताब पढ़ रहे हो, आंट यू रीडिंग अ बुक, तो इसको कैसे लिखेंगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ARENT, आंट यू, READING, and BOOK with a question mark, aren't you reading a book, right? Arna, you want to say something? Yes, sir. It can be like get that book or get the book. Sorry, which one? Get? It can be get the book and get that book. See, when you say get the book and get that book, the book and that book have totally different meanings, which means get the book. Get the book, लेके आओ किताब, कौन सी किताब जिसकी बात हो रही है, get the book, वो किताब लेके आओ, specifically a specific book, and get that book, वो उधर जो पढ़ी है ना वो वाली किताब लेके आओ, that way, that book, right? So you are pinpointing with its position, that book, वो वाली किताब लिख के आओ, and the book, वो book जिसके बारे में हमने बात की थी, get the book. So that's a specific one, right? All right, we'll quickly move ahead. Next one, वह दोस्तों से मिल रही है. I'll ask दीप्ति, आप बताइए, आपको बताना है इसका पॉजिटिव, वह दोस्तों से मिल रही है. सर एक बार रिपीट करिए, could you repeat it? Yeah, I'll repeat it for you. It is वह दोस्तों से मिल रही है. वह दोस्तों से मिल रही है। She is Yeah, मिलने की क्रिया क्या होती है anyone? meeting. To meet, meeting हो जाएगा. Very good. बताइए दीप्ति. She is meeting her हाँ, very good. Her. friends. Very good. वह अपने दोस्तों से मिली. आपने बड़ा अच्छा वाक्य बनाया. She is meeting her friends. Right. इसका नेगेटिव बना दीजिए. She is not meeting her friends. Very good. अब इसका प्रश्नवाचक बनाइए. She is meeting her friends का. Is she meeting her friends? Very good. Is she meeting her friends? Is she meeting her friends? क्या वो अपने दोस्तों से नहीं मिल रही है क्या? अब इसका नेगेटिव करके बनाइए. Is she not meeting her friends? Very good. Isn't she meeting? उसको और इजी कर देते हैं. Isn't she meeting? Isn't. Isn't she meeting her friends? That's like a smooth way to say. Isn't she meeting her friends? Clear है आपको दीप्ति, everyone? Yes. Okay. Next. मैं फोन पर बात कर रहा हूँ. कृष्णमन्यु बताइए. यस सर. बताइए पॉजिटिव. मैं फोन पे बात कर रहा हूँ. सर अपने आएगा मैंने आए. हाँ. बताइए. मैं तो क्या होगा, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ. आई एम. बताइए आगे. आई एम, मैं क्या कर रहा हूँ. बताइए बताइए. आई एम टॉकिंग. एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग. आई एम टॉकिंग. I'm talking on the phone. I'm talking on the phone. I'm talking on the phone. इसका नेगेटिव बताइए कृष्णमन्यु फटाफट से. I'm talking on the phone का. सही मुझे क्या? I am not talking on the phone. Very good. I'm not talking on the phone. Right. चलिए, we'll check with someone else now. Next one is for Manshi. Good evening, Manshi.
सर इसका क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे? हाँ चलिए, गुड इवनिंग मानसी। दीप्ति आप भी बता दीजिए इसका क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। आई एम टॉकिंग ऑन द फोन का आई एम का क्या बन जाएगा? घुमा दीजिए आई एम को, आई एम को घुमा दीजिए। Am I? हाँ, am I talking on the phone? Am I talking on the phone? Right? Am I talking on the phone? और negative? Are you? No, no. नहीं नहीं, you नहीं। बताइए anyone कैसे बोलेंगे नेगेटिव में? I meant, Am I talking on the phone? एक एक करके साक्षी से सुनते हैं। साक्षी बताइए। Am I talking on the phone? तो नॉट तो लगाया ही नहीं आपने साक्षी, Oh, नॉट ही। sorry, sir. Am I not talking on the phone? वेरी गुड। am I not talking on the phone? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ और तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, शोर मचा रहे हो। am I not talking on the phone? Can't you see it? Exactly that way. Correct. ठीक है दीप्ति, समझ में आ गया? am I not? Am I not helping her? Am I not talking on the phone? Am I not explaining you? क्या नहीं समझा रहा क्या मैं तुम्हें? You know that way. Okay. वे अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। मानसी, I think she got disconnected. We'll ask Rajeshwari. वे अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। They are giving attention to their work. Okay. They are के बाद क्या बोला है आपने? Giving. Okay. They are giving attention Okay. जो to their work. हाँ, अब आपने क्या किया? आपने शाब्दिक अनुवाद किया राजेश्वरी, आपने ध्यान देना। तो अंग्रेजी में होता है टू पे अटेंशन, यू से पे अटेंशन, है ना? कभी भी हम गिव अटेंशन नहीं बोलते, टू पे अटेंशन। तो क्या बोलेंगे आप? दे आर paying attention to their work. Absolutely, they are paying attention. They are paying attention to their work. They are PAYING. They are paying attention. इसमें हो सकता है they are paying attention to their work. To their work. There की spelling THEIR होती है there. On the हाँ बिल्कुल हो सकता है they are paying attention on their work. राइट जब हम टू की बात करते हैं ना तो हम उसको पूरा एक कंपोनेंट मान के उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं इस तरीके से, और ऑन इसके ऊपर ऐसे ध्यान देते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाता है। ऑन द वर्क एंड टू द वर्क, दे आर पेइंग अटेंशन टू द वर्क। सर तो कॉन्सेंट्रेटिंग भी तो बोल सकते हैं ना? दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर वर्क। यस सर, हाँ। वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं आप साक्षी? वापस से बोलिए आपका सेंटेंस। दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग। They are concentrating on their work. They are Concentrating. concentrating Training sir. Training, हाँ sir, yes sir, yes. training नहीं, On concentrating their work. on their work. Okay. इसका क्या मतलब होता है? कंसंट्रेट करना यानी उस पर ध्यान देना, राइट? उस पर एकदम फोकस करना। तो जो इन्होंने कहा है राजेश्वरी ने वो भी ठीक है, पेइंग अटेंशन भी ठीक है, कॉन्सेंट्रेटिंग भी ठीक है। एक और हो सकता है फोकसिंग, फोकस करना, उस पर एकदम ध्यान केंद्रित करना, उसको हम कहते हैं ना फोकस करना। तो आप वो भी बोल सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। सो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर कि दे आर फोकसिंग ऑन देयर वर्क। तो मैं फोकसिंग की स्पेलिंग लिख देता हूँ, FOCUSING, फोकसिंग, राइट? क्या कह रहे हैं आप अरबाज? You are caring your work. केयरिंग मतलब उसका ध्यान रखना किया है। काम पे ध्यान दे। नहीं, जो केयर करते हैं CARE वाला केयर कह रहे हैं आप? Yes sir. ओके, वो सिर्फ केयर ऐसे नहीं जाएगा, टेक केयर होता है, ध्यान रखना, टेक केयर। तो आप अगर वाक्य बनाना चाहते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा, पर वाक्य ऐसे बनेगा अरबाज, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर वर्क। दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर वर्क। क्या मतलब है इसका? वो अपने काम का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है? किसी ने पूछा बहुत ही गलत काम करते हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो आप कहेंगे नो नो सर, आई हैव स्पोकन टू देम, आई हैव स्पोकन टू देम एंड नाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर वर्क। मैंने उनसे बात कर ली है, वो अब अपने काम का ध्यान रख रहे हैं। काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अरबाज, काम का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको फर्क? एवरीवन, राजेश्वरी, दीप्ति, इज इट ओके? ओके, आगे बढ़ते हैं।
सो हमने नेगेटिव देख लेते हैं. नेगेटिव बताइए राजेश्वरी. दे आर पेइंग अटेंशन टू देयर वर्क का. नेगेटिव होगा सर इसका, they are not paying attention to their work. वेरी गुड. और प्रश्न भी बता दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव. Are they paying attention to their work? वेरी गुड. बहुत अच्छा टोन लिया आपने. और नेगेटिव बताइए. Aren't they paying attention to their work? वेरी गुड. आंट दे पेइंग अटेंशन टू देयर वर्क. क्या वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे क्या? आंट दे. वेरी गुड. चलिए, तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो. whom should I ask quickly? Let me see. Manshi, you are there. Manshi, can you hear me? Yes, sir. चलिए मानसी बताइए, तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो. You are car. या यू आर ड्राइविंग योर कार. यू आर ड्राइविंग. अभी हमने देखिए ड्राइविंग काम में लिया ना, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं. ड्राइविंग योर कार. तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा मानसी? You are not driving your car. वेरी गुड. और इसका प्रश्न बनाइए पॉजिटिव नेगेटिव. Are you driving your car? वेरी गुड. और नेगेटिव. You aren't driving your car. आंट यू. ठीक है. Yes, sir. Aren't you driving your car? तुम अपनी गाड़ी नहीं चला रहे हो क्या? Aren't you driving your car? Perfect. All right. हम आगे देख लेते हैं फटाफट से. हम नाश्ता कर रहे हैं. दीप्ति, हम नाश्ता कर रहे हैं. Then I'll ask Arna and the other people as well. Pranchal. पहले दीप्ति. Yeah. हम नाश्ता कर रहे हैं. We are taking a breakfast. Okay. मुझे लगता है शायद साक्षी ने ये वाला प्रश्न पूछा था हमसे सबसे ग्रुप में. याद है आप सभी को? तो Yes, sir. कौन सा वर्ब लगाते हैं? टेकिंग या हैविंग? Having. हैविंग. हाँ, तो बताइए क्या बोलेंगे आप दीप्ति? We are having a lunch. Breakfast. हाँ, आपने पहले वाक्य में तो ब्रेकफास्ट के लिए, दूसरे में लंच पे पहुंच गए आप. Yes, sir. अब तीसरा करवाऊंगा तो आप शाम की चाय लेंगे, और चौथे में तो डिनर पे पहुंच जाओगे आप. हम नाश्ता कर रहे हैं. वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट. वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट. आई होप आप इस शब्द को सही पढ़ते हैं. ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट नहीं है. ब्रेकफास्ट. बोलिए सब लोग. ब्रेकफास्ट Breakfast. है ना? फर्स्ट. ब्रेकफास्ट. वेरी गुड. वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट. नेगेटिव बताइए फटाफट से दीप्ति. We are not having breakfast. वी आर नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट. और प्रश्न बनाइए. Are we, या are we having breakfast? वेरी गुड. और लास्ट Aren't having breakfast? आंट के बाद वी कौन लगाएगा? Aren't we having breakfast? हाँ, आप लोग सुबह तैयार हुए और सब घूमने निकल गए, तो किसी अरे भाई नाश्ता नहीं कर रहे क्या अपन लोग? Aren't we having breakfast? Yes, we are having breakfast, but not here at the camp. ऐसा कुछ, right? Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. अर्ना बेटा बताओ नेक्स्ट वन. वह शाम को टहल रही है. She is wandering around in the evening. She is. Wandering around in the evening. She is wandering. Okay, wander जो करते हैं उसको आप बोल रहे हो ना. She is wandering around in the evening. Okay, but wandering जो होता है ना वो wander is like you don't have any purpose to move around. तो हम बोलते हैं wandering. जो अर्ना ने verb use किया मैं लिख देता हूँ सभी के लिए. Wander. Wander होता है WANDER. Wander होता है बिना किसी गोल के, बिना किसी पर्पस के घूमना, राइट? बट जो टहलना होगा we will say it as walk, right? Walking. That will be simple, right? अर्ना आप बताइए now. In the evening. Yeah, she's walking in the evening, right? She's walking in the evening. Sir, should I tell the negative on the evening? बिल्कुल. She's walking in the evening लिख लूं मैं, उसके बाद इसका नेगेटिव बनाओ, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस भी बनाओ. अर्ना दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बताइए. She is not walking in the evening. Right. Then Answer the question. yeah बताइए. Yes, questions. Does she walk in the evening? Okay. What else? Is नेगेटिव बनाना है. पहले एक बार ये लिख देता हूं ताकि किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे को बता देगा. Does she walk in the evening? नेगेटिव भी बनाओगे इसका आप अर्ना? Yes, sir. बताइए. What is the negative? Doesn't she walk in the evening? Doesn't she walk in the evening? But
Is there any problem in these two questions, everyone? Anyone? Yes, sir. बताइए क्या दिक्कत है साक्षी? सर इसमें ING नहीं लगा हुआ है. हाँ, आईएनजी नहीं लगाया अर्णा आपने, आपको आईएनजी लगाना था, आप तो पहुंच गए सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन पे चले गए आप. डज शी वॉक इन द इवनिंग? क्या वो शाम को वॉक करती है? आपको तो वॉकिंग बोलना था, तो क्या होगा अर्णा इसका? याद कीजिए. एनीवन? अर्णा, यू वुड लाइक टू हेल्प अस क्विकली विद दैट? इज शी वॉकिंग इन द इवनिंग? इज शी वॉकिंग इन द इवनिंग? ये बोलना था आपको, राइट? इज शी वॉकिंग इन द इवनिंग. और नेगेटिव क्या हो जाएगा अर्णा? The answer? No, no. The negative as a question. Negative question. Is Isn't she walking? Ab- Isn't she? exactly. Isn't she? Isn't she walking in the evening? Isn't she walking in the evening? Perfect. All right. Next, we have Pranjal. मैं एक नई कहानी लिख रही हूँ. मैं एक नई कहानी लिख रही हूँ. I am writing a new story. Very good. I'm writing a new story. Negative बताओ इसका Pranjal. I am not a new story. I'm not writing a new story. ठीक है, अब इसके questions बना दो Pranjal. Am I writing a new story? Very good. Am I writing a new story? और इसका negative? Am I not writing a new story? Very good. Am I not writing a new story? क्या मैं एक नई कहानी नहीं लिख रही हूँ क्या? अच्छा, ये पुरानी है क्या? सबको आती है क्या कहानी पहले से? तो आपको हैरानी हुई तो आपने अपने आप से एक प्रश्न कर डाला. Am I not writing a new story? क्या मैं नई कहानी नहीं लिख रही हूँ क्या? अच्छा, ये सबको पता है, बहुत पुरानी कहानी है क्या? Okay, so I'll change my story that way. Okay, आगे देखते हैं फटाफट से. अरबाज, बच्चे टीवी देख रहे हैं. Arvaz, can you hear me? Am I audible to everyone? I don't know. Yes, sir. Yeah, Arvaz, are you there? Can you just unmute yourself? I think he cannot, perhaps not. We'll move ahead. Deepti, आप बताइए. बच्चे टीवी देख रहे हैं. Children watching TV. आपको तो क्या है कि Children, हाँ, no, हाँ. children are watching TV. हाँ, आप सीधे आईएनजी पे पहुंच जाते हो बड़े खुशी खुशी, फिर आपको याद है अरे कुछ तो गड़बड़ है, बीच में कुछ मिस हो गया. आपको खुद को लगा कुछ बीच में कुछ मिस हो रहा था? That's all. हाँ, नहीं, बट आपको खुद को फील होता है क्या दीप्ति की कुछ मिस हो रहा है सर बीच में? हाँ, कभी 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 मिस हो रहा है. हमेशा नहीं. अच्छा, हमेशा नहीं, पर वो कभी कभी से हमेशा पे जाइए और आप हमेशा इसको सही रखिए. सो चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी. या सो हमको देंगे द चिल्ड्रन कर देंगे इसको हमेशा. द चिल्ड्रन, CHILDREN. द चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी. चलिए, इसका नेगेटिव कर दीजिए, प्रश्न बना दीजिए फटाफट से. प्रश्न. हाँ, पहले इसका नेगेटिव कर दीजिए दीप्ति. नेगेटिव करिए इसका. The children are not watching TV. ठीक है, Are children watching TV? राइट. Is aren't children watching TV? वेरी गुड. आर द चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी? आंट द चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट. Sir, the का अगर यूज नहीं करते तो रॉन्ग. रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन जनरली हम चिल्ड्रन के साथ द लगा द चिल्ड्रन. हम स्पेसिफाई करें ये वाले बच्चे जो है ना, वो जो बच्चे हैं वो टीवी देख रहे हैं. क्योंकि अगर आप द नहीं लगाएंगे तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किन बच्चों की बात हो रही है, इस वजह से. राइट, ओके. विल मूव अहेड. अरबाज, कैन यू हियर मी? अरबाज, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब बताइए. हम सब्जियां खरीद रहे हैं. Are buying vegetables. We are buying. क्या बोला आपने इस शब्द का उच्चारण? The vegetable. We are buying vegetables. Vegetables, right? बोलिए vegetables. Yeah, vegetables, right? Vegetables नहीं है, vegetables. Vegetables. Try कीजिए. Vegetables. Right. Vegetables बोल रहे हैं. हाँ, हम vegetables बोलते हैं. Vegetables बहुत अच्छे से बोलते हैं दम लगा के. फिर हमें बोलना है vegetables. Vegetables. Vegetables, right? Okay. तो अरबाज इसका नेगेटिव बताइए. We are buying vegetables का नेगेटिव. Yeah, we are not buying vegetables. Very good. We are not buying vegetables. और इसके क्वेश्चन बना दीजिए, पॉजिटिव फिर नेगेटिव.
आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, बट आई थिंक आप, या क्या बोल रहे हैं आप, वापस बोलिए अरबाज। आपकी थोड़ी आवाज मिस हो गई। या आपने ये बोला, आर वी बाइंग वेजिटेबल्स, इज इट ओके? और नेगेटिव क्या होगा इसका? aren't we buying vegetables? हाँ, आरंट नहीं करना, अच्छे से बोलिए। Aren't सुनिए, we buying vegetables? आपका स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर सही है। इसमें बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है अरबाज, आप म्यूट पे रहेंगे एक बार प्लीज। Sir, बारिश थोड़ी बहुत हुई। It's raining heavily at my place. It's raining heavily at my place. आता है लिखना आपको? It's raining heavily at my place. और इसका एक और एक्सप्रेशन होता है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। It's raining cats and dogs. जब इतनी मूसलाधार बारिश हो कि लगे कि आसमान से बिल्लियां और कुत्ते गिर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एट माय प्लेस सर। क्या मतलब होता है इसका दीप्ति? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी तेज बारिश या बहुत तेज बारिश हो रही है, राइट? सो व्हेनेवर यू वांट टू से बहुत It's pouring. इट्स पोरिंग, It's pouring. इट्स पोरिंग, या इट्स पोरिंग भी हो सकता है। इट्स पोरिंग मतलब कि कैट्स एंड डॉग्स का यूज बारिश में ही कर सकते हैं। हाँ, और कहीं नहीं करना है। इसके पीछे की कोई एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, उसमें हम जाएंगे नहीं। तो जब कभी भी बहुत मूसलाधार ताबड़तोड़ बारिश हो, जैसे अभी अरबाज ने कहा सर बहुत भयंकर बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो इनको कहना है या तो सर इट्स रेनिंग हेविली एट माय प्लेस, अन्यथा जो राजेश्वरी ने कहा इट्स पोरिंग एट माय प्लेस, या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एट माय प्लेस। और सर कोई बहुत तेज भाग रहा हो तो उसके लिए यूज नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ बारिश नहीं, सिर्फ बारिश के लिए और कहीं नहीं। और आपको लगा कि इन पशुओं को कहीं और भी ले जाके काम में ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ बारिश में काम में लेना। या Right? अर्ना टेल मी। It's an idiom, right? Yeah, exactly, that's an idiom. It's raining cats and dogs. All right. So अरबाज वापस आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पे। तो मुद्दा ये था कि इन्होंने कहा, अरबाज इफ यू कैन हियर मी, नेगेटिव हमको बना था aren't we, aren't we। तो मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूं सभी को कि आपको aren't नहीं बोलना, आपको बोलना aren't, aren't, ठीक है? थोड़ा सा सॉफ्टली, aren't we buying vegetables। बोलिए अरबाज, थोड़ा सा र टच करते हैं, थोड़ा सा aren't, ठीक है? एक जो आंटी होती है ना, आंटी, उसको बोलते हैं आंट, आंट, ये आंट, हल्का सा र पे जाके उतर जाना है, आंट, ठीक है? आंट, पर आरंट नहीं है, आरंट इज नॉट अ गुड प्रोनाउंसिएशन, सो प्लीज अवॉइड दैट। यू हैव टू से आंट वी बाइंग वेजिटेबल्स। आप लोग मार्केट में गए और फिर वापस लौट के घर की तरफ जाने लग गए, तो एकदम से अरबाज आपको याद आ रही सब्जियां तो खरीदी नहीं, तो आपने कहा अरे aren't we buying vegetables, aren't we buying vegetables, no we are not buying vegetables, we aren't buying vegetables, we already have them at our place, हमारे पास ऑलरेडी सब्जियां हैं घर पे। Is that okay? Arna, you want to say still something? Your hand is raised. Okay, that's better. So keep raising. Sorry, it's It just keeps raising again and again when I told you. okay, there's some technical, but now it's fine, it would not, just take care of it. Yeah, okay, let's move ahead. तुम इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हो, या whom didn't I ask? कृष्ण मनु, आप बताइए। कृष्ण मनु, तुम इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हो। सर इसमें इंग्लिश पूरी इसी में यूज कर रखी है। तो बढ़िया काम हो गया ना, इंटरनेट मिल गया आपको दीप्ति, सर्फिंग मिल गया, और बताइए सब आ गया आपके लिए। तो कितनी अच्छी है हमारी हिंदी, आप सोचो हिंदी हमारे इतने सारे अंग्रेजी के शब्द काम में लेती है कि हमारे को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो अब तो इसका सही उत्तर आना चाहिए फिर इस हिसाब से। तो बताइए कृष्ण मनु, तुम इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हो। हाँ सर, ये बोल सकते हैं, यू हैव सर्फेड द इंटरनेट। Very good. You are surfing the internet. You are surfing the internet. Exactly. Very good. ठीक है, इसका नेगेटिव बताओ कृष्ण मनु। You are surfing the internet का नेगेटिव क्या होगा? You You are not. You are not. You are not surfing the internet. You aren't
You aren't surfing the internet. Exactly. और इसके प्रश्न बनाते हैं हम साथ में. कृष्णमन्यु बताइए. या Sir, surfing means सर्फिंग मीन्स ब्राउज करना. इंटरनेट पे बैठ के हम देखते हैं ना चीजों को, उसको ब्राउज करते हैं, उसको बोलते हैं सर्फ करना. राइट, सर्फिंग करना. कई लोगों को की हॉबी होती है इंटरनेट सर्फ करना, कोई भी प्रोफेशनल रीजन से, पर्सनल रीजन से, टाइम पास रीजन से. इट कैन बी एनीथिंग. राजेश्वरी, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. बताइए. So, इसमें ऐसा नहीं लिख सकते, you are surfing on the internet. अब देखिए, आपकी बात सही है. यू आर सर्फिंग ऑन द इंटरनेट एंड यू आर सर्फिंग द इंटरनेट. इनमें थोड़ा सा फर्क है. जब हम कहते हैं ना यू आर सर्फिंग द इंटरनेट, तुम इंटरनेट पे ही, पूरे इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हो, यानी तुम घूम रहे हो उस पूरे इंटरनेट पे. एंड यू आर सर्फिंग ऑन द इंटरनेट का मतलब हो जाएगा कि हम कुछ चीज को ढूंढ रहे हैं. आई एम सर्फिंग लेट्स से कोई चीज हमें डालनी पड़ेगी वहां पे. आई एम सर्फिंग Weather forecast. weather forecast. Very good. I'm surfing weather forecast on the internet. बिल्कुल. जब आपको मुद्दा पता है क्या ढूंढ रहे हो, तब तो आप वो चीज लगा के ऑन बोल दोगे. अन्यथा आप घूम रहे हो इंटरनेट पे बस इधर उधर, कभी कोई वेबसाइट कभी कुछ, तब होगा आई एम सर्फिंग द इंटरनेट. मैं तो इंटरनेट पे घूम रहा हूँ. वो हिंदी में तो खैर पे बोला है. राइट. ऑलराइट. Okay, so with Arna, I won't be too sure if you're raising your hand or it's by technical glitch. Okay, so we'll quickly move ahead. यहाँ तक अगर क्लियर है आप लोगों को. Quickly tell me, did we do this these sentences? मैंने खाना खा लिया है, उसने किताब पढ़ ली है. Did we do these? Everyone, we did that, right? कहाँ तक कर लिया था हमने yesterday? 16 तक. चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से. थोड़े थोड़े देखते हैं आपको कितना. चलिए. I think I showed my previous raise hand. Sorry, what is it? Sir, ये हो गया अभी. नहीं, ये तो हो गया अभी. तो ये तो वो वाला है, मैंने एक ईमेल लिख लिया है. राजेश्वरी, हाँ. हो गया था क्या ये वाला? हाँ, ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है ये वाला. अब अभी जो हम करके आए थे वो हम ईमेल लिख रहे थे, Okay, sir. है ना. टेंस बदल चुका है. I couldn't understand a bit of it. Now could you please repeat slowly? What are you saying? I think it's showing my previous raise hand. It was showing your previously raised hand. Not a problem. Now it is not showing me anything anymore. So don't worry about it. Don't worry, right? Yeah. Okay. But I have to be very concerned of the fact that if someone raises the hand, you'll have to take care of that technical thing. Okay. मैंने एक ईमेल लिख लिया है. बताइए अरबाज, मैंने एक ईमेल लिख लिया है. I have written a letter. I have written. A letter. ईमेल पे थे ना हम, लेटर पे आप कहाँ पहुंच गए अरबाज? कैसे होगा? Hello. हाँ बताइए क्या होगा. मैंने एक ईमेल लिख लिया है. I have written a letter. I have written an email. I have written an email. ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अरबाज, I have written an email. Yes, sir. Right? इसका नेगेटिव बता दीजिए अरबाज फटाफट से. मैंने ईमेल नहीं लिखा है. I haven't written a mail. Very good. I haven't written an email. I have not written an email. I have not written an email, or I haven't written an email. Perfect. प्रश्न पूछिए, क्या मैंने ईमेल लिखा है? Have I Exactly. Have I written an email? क्या मैंने ईमेल लिखा है? या फिर मैंने ईमेल नहीं लिखा क्या? मैंने ईमेल नहीं लिखा है क्या? क्या बोलेंगे इसको अरबाज? थोड़ी आवाज कट रही है आपकी. I'm sure आप कहना चाह रहे haven't I, right? Haven't I written an email? Perfect. Haven't I written an email? Haven't I written an email? Okay. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Next I will ask Arna. Arna बताइए. Yes, sir. This one. The children have played in the playground. Yeah, the children have played in the playground. Very good. Negative बताओ फटाफट से.
The children have not played in the playground. वेरी गुड. अब इसका क्वेश्चन बनाओ अर्णा. Have the children played in the playground? वेरी गुड. और नेगेटिव बनाओ. Haven't the children played in the playground? परफेक्ट. हैवंट द चिल्ड्रन प्लेड इन द प्लेग्राउंड. बच्चों ने खेला नहीं है क्या प्लेग्राउंड में? नहीं खेला, क्योंकि वो बारिश आ रही थी इस वजह से. ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव दीप्ति. दीप्ति आप फटाफट से बताइए. हमने संगीत सुन लिया है, इसके चारों रूप बता दीजिए. पहले इसका हाँ. we have listen music, लिसन या लिसनड? listen, नहीं, ईडी की ध्वनि नहीं आ रही है. लिसनड, LISTENED, लिसनड. ठीक है. listen, नहीं. listen, स्पेलिंग बताइए. LISTEN. लिसनड क्यों नहीं होगा दीप्ति? थर्ड फॉर्म होगा ना, याद कीजिए. प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है. Listen. Yes. याद आ गया? हाँ, तो कैसे बोलेंगे दीप्ति? I have listened, no sir, we have listened music, हाँ, we have listened to the music या we have listened the music. ठीक है, आगे बताइए. नेगेटिव करिए इसका. we are not listening the music, वी के बाद क्या लगाया आपने? we haven't listened the music, We have listened the music. We haven't listened the music. और प्रश्न बनाइए अब इसका. haven't we listened music, वेरी गुड. पहले पॉजिटिव बनाते हैं दीप्ति. हैव वी लिसन्ड टू द म्यूजिक? हैव वी लिसन्ड म्यूजिक. और नेगेटिव, हैवंट वी लिसन्ड द म्यूजिक? हैवंट वी लिसन्ड द म्यूजिक. परफेक्ट. क्लियर है आपको एवरीवन? इज दैट ओके? चलिए. Yes. ओके, नेक्स्ट वी हैव कृष्णमन्यु. कृष्णमन्यु बताइए. उसने दोस्तों से मुलाकात कर ली है. वो दोस्तों से मिल लिया है. बताइए. उसने क्या मीनिंग? हाँ, इसको वह दोस्तों से मिल लिया है. वह दोस्तों से मिल लिया है, ऐसे बोल देते हैं इसको. बताइए. तो ये बच्चों को अपने ही ये सारा ही हाँ. ही आगे ही के बाद क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? ही हैज. और ही हैज और मिलने की क्रिया क्या होती है? टू मीट. वेरी गुड. और उसका मेट बन जाएगा. वेरी गुड. तो ही हैज मेट वेरी गुड. ही हैज मेट हिज फ्रेंड्स. वो अपने दोस्तों से मिल लिया है. ही हैज met his friends. इसका नेगेटिव बनाओ कृष्णमन्यु. तो इसका नेगेटिव बन जाएगा अपना he has not met his friends. वेरी गुड. he has not met his friends. he hasn't met his friends. और इसका क्वेश्चन बनाओ. तो अपना इसका उल्टा इस बन जाएगा has he बोलिए. has he met his friends. has he met his friends. has he कर देंगे. has he met his friends? has he met his friends? क्या वो अपने दोस्तों से मिला है? और नेगेटिव क्या होगा इसका कृष्णमन्यु? सर has he not has met his friends. has he not met his friends? very good. या फिर hasn't he met his friends, right? has he not और hasn't he. perfect. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैंने फोन पे बात कर ली है. I'll ask मानसी. मानसी बताइए. मानसी, can you hear me? I have Yeah.
बताइए आई हैव सर बात करना का बात करने का एनीवन अनम्यूट करके बताइए बात करना क्या होता है अंग्रेजी में या I have talking. आई हैव टॉक क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉकन टॉकिंग क्या होगा टॉक एग्जैक्टली टॉक्ड मैंने किसी को सुना किसी का टॉक I have talked the phone. I have talked on the phone. I have talked on the phone. I have TALKED. I've talked on the phone. All right, I've talked on the phone. I've talked on the phone. इसका नेगेटिव बताइए. I have not talked on the phone. Exactly, I have not talked on the phone. Arna, I would suggest you one thing. I think you'll have to leave once and then rejoin because I think your hand is getting raised and that's making the sound. है ना एक बार आप डिस्कनेक्ट करिए और वापस ज्वाइन कीजिए that would help you perhaps. Okay, so I have talked on the phone is the correct one. मानशीष का नेगेटिव आपने बोला I have not talked on the phone. ठीक है अब इसका आप क्वेश्चन बनाइए. You talk on the phone. Have I talked on the phone? Have I talked on the phone? और नेगेटिव क्या हो जाएगा बताइए. Have not. Haven't I talked on the phone? Haven't I? Right? Haven't I Yes, talked on the phone? Very good. चलिए perfect. फटाफट से आगे बढ़ते हैं. काफी सारे हैं तो हम सभी नहीं करते हम कुछ स्किप कर देते हैं. हम आ जाते हैं इस पे आते हैं. मैंने एक नई कहानी लिख ली है और ये मैं पूछता हूँ. लेट मी आस्क प्रांजल. प्रांजल बताइए आपके लिए यही वाला आया था प्रांजल मुझे याद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी. written the story. तो नई तो लिखी नहीं आपने. Also, I've written a new story. वेरी गुड. आई हैव रिटन अ न्यू स्टोरी. नेगेटिव बताओ प्रांजल. I haven't written a new story. या आई हैवंट रिटन अ न्यू स्टोरी. अब क्वेश्चन बनाओ प्रांजल. Have I written a new story? हैव आई रिटन अ न्यू स्टोरी. ओके और नेगेटिव. Have I not written a new story? या हैव आई नॉट रिटन अ न्यू स्टोरी या हैवंट आई रिटन अ न्यू स्टोरी. वेरी गुड वंडरफुल. ओके और अंत में एक ये वाला देख लेते हैं फिर हम आगे वाले टेंस पे बढ़ते हैं फटाफट से. लास्ट राजेश्वरी आप ट्राई कीजिए. Yes, sir. या We have bought vegetables. वेरी गुड. वी हैव बॉट वेजिटेबल्स. नेगेटिव. Negative. We haven't bought vegetables. Absolutely, we haven't bought vegetables. Very good. और क्वेश्चन बनाइए. Haven't we bought vegetables? Very good. Vegetables. Yeah, haven't we bought vegetables? Perfect. और कुछ बच गया? haven't we? Haven't we? Haven't we? तो Haven't we? haven't we? Bought vegetables? ठीक है, perfect. आपने कहा have we bought vegetables और haven't we bought vegetables? Perfect. चलिए, तो ये हो गया हमारा present perfect का हमने देखा. नहीं बिल्कुल purchased बोल सकते हैं. purchase भी बोल सकते हैं दीप्ति. That's correct. Purchase, right? Purchase. Are you going to see my raised hand again? I don't know how to help you for that. You let it be raised then, right? So that it doesn't give that ting sound every now and then. If it is raised, let it be raised. If you want to say something, then just unmute yourself if you wish to say something, right? If it gets raised, don't put it down then. Don't lower it. Keep it that way. If it does. You can just write it in the chat box. No, you can always unmute yourself. That possibility you have, right? Okay. So Deepthi, you were asking, can we replace buy with purchase? Absolutely. Yeah, you can do that. कोई दिक्कत नहीं है. दोनों ठीक है. पर purchase बहुत आप जो purchase करते हैं ना तो बहुत ही एक conscious effort होता है और एक बहुत ही आप ध्यान पूर्वक purchase करते हैं, right? But buying is a very regular word that we use when you buy everything, you know, without too much of an attention. It depends. Right? All right, let's quickly move ahead. अब हम देख रहे हैं simple past.
सिंपल पास्ट। आपको याद है सिंपल पास्ट? जो लोग थे क्लास में, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। हाँ, मैंने खाना खाया, इसका आप पहले एक बार पॉजिटिव बताइए, हम इस पेज से आगे चल पड़ेंगे क्योंकि ये वाला आपने शायद कर लिया था। मैंने खाना खाया, हाउ डू यू से दैट इन इंग्लिश? I ate. I will eat. दीप्ति, ये विल पे कहाँ पहुंच गए आप? No. हाँ, तो आई एट, बिल्कुल राजेश भाई ने सही बताया, आई एट, आई एट, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आई एट फूड। ठीक है, इसका नेगेटिव, अब आ जाते हैं हम असली चैलेंज पे। आई एट फूड, इसका नेगेटिव कौन ट्राई करेगा? I ate. I did eat food. I didn't eat food. I didn't eat food. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं। आई डिडंट, I didn't eat food. okay, so the right answer is, I mean, some Arna did say it, I didn't, I'm sorry, मैंने नेगेटिव बोला ना, I ate food, I didn't eat food, I didn't eat food, right? You will say didn't, right? D-I-D-N-T, did not, इसका होता है did not, इसको पूरा लिखना चाहें। एक का ईट हो जाए। बिल्कुल, अब याद कीजिए दीप्ति, हमने सीखा था कि जब हम डिड लगा देते हैं पास्ट में तो हम ओरिजिनल फॉर्म लगाते हैं, याद है? तो आई डिडंट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। क्लियर है राजेश्वरी, एवरीवन? साक्षी, समझ में आ रहा है आपको? Yes. याद आ गया? ओके, अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन मेक एनी क्वेश्चन आउट ऑफ इट। हाँ, क्या मैंने खाना खाया? क्या मैंने खाना खाया? Did I eat food? एक एक करके, पहले साक्षी से सुनते फिर अर्णव बताएगा। साक्षी बताइए, Did I eat food? आप डिड आई के साथ, यस अरबाज, Did I eat food? वेरी गुड, डिड आई ईट फूड। साक्षी, समझ में आ रहा है आपको? 8 नहीं लगाना बेटा, डिड आई ईट फूड, Yes, sir. डिड आई ईट फूड। Didn't I eat food? हाँ, वो भी नेगेटिव में आएंगे, वो भी नेगेटिव में आएंगे ना, अभी पॉजिटिव है। क्या मैंने खाना खाया? डिड आई ईट फूड, मैं भूल गया, मतलब कुछ हुआ और मैं भूल गया, मैंने खाना खाया नहीं खाया, मैंने पूछा डिड आई ईट फूड, मुझे याद नहीं आ रहा, पेट भरा भरा सा लग रहा है, मैंने क्या खाया था मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने खाना खाया था क्या? डिड आई ईट फूड। और अब बताइए राजेश्वरी, आप नेगेटिव में कह रहे हैं मैंने खाना नहीं खाया क्या? Didn't I eat food? डिडंट, एक तो इसको Didn't I eat? या डिडंट आई ईट फूड, D-I-D-N-T, डिडंट आई ईट फूड, डिडंट आई ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया क्या? डिडंट आई ईट फूड, राइट। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे असली ट्विस्ट है, Yes, sir. अब मजा आएगा। चलिए, उसने किताब पढ़ी, बताइए। मैं ओके, आई विल आस्क वन बाय वन, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद अर्णा। चलिए अर्णा आप बताइए, फिर अरबाज ऐसे आगे बढ़ेंगे। चलिए अर्णा बताइए। He read the book. ही रेड द बुक, He did read the book. ही डिडंट रीड अ बुक, या दीप्ति जी आप म्यूट पे रहिए। दीप, या कैरी ऑन अर्णा। Yes, sir. Sir, didn't I read a book? आए कहाँ पे पहुंच गए आप? ही से डिडंट ही रीड अ बुक, It's not been in the I. या सो डिडंट ही Did he read the book? या डिड ही रीड अ बुक, और नेगेटिव हो जाएगा डिडंट ही रीड अ बुक। Yes. क्लियर है सभी को? एवरीवन, कोई डाउट किसी को भी? दीप्ति, मानसी, कृष्ण, मान्यू, प्रांजल, No, sir. राइट? एक बात ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, डिड लगते ही प्रेजेंट जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है वो आएगा क्रिया का, एट नहीं आएगा, राइट? और कुछ नहीं आएगा। चलिए आगे है लिस्ट में अरबाज। अरबाज आप ट्राई कीजिए। उन्होंने फुटबॉल खेली, मतलब उन्होंने फुटबॉल का जो खेल है वो खेला, तो क्या होगा? दे प्लेड, हाँ दे प्लेड फुटबॉल, बिल्कुल ठीक है, दे प्लेड फुटबॉल। इसका नेगेटिव करिए। वेरी गुड, दे डिड नॉट या दे डिडंट प्ले फुटबॉल, वेरी गुड। इसका प्रश्न बनाइए। हाँ, थोड़ा सा इसमें आपको ना उच्चारण पे, मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से बोलिए, प्ले की जगह प्ले,
राइट आपको पले नहीं बोलना, आपको बोलना है प्ले, प्ले, राइट, प्ले, प्ले। या सो क्वेश्चन हो जाएगा, डिड दे प्ले फुटबॉल, डिड दे प्ले फुटबॉल, राइट। और नेगेटिव में क्या होगा अरबाज? Didn't the player football? Yeah, didn't they play football? Didn't they play football? Didn't, right? Didn't they play football? All right, correct है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। Yeah, you can be on mute. Next we have दीप्ति। दीप्ति आप ट्राई कीजिए, तुमने गाना गाया। दीप्ति, are you there? Yes, sir. बताइए, तुमने गाना गाया। You some बोलिए यू, Friends. क्या लगाएंगे? संग, सैंग, क्या लगाएंगे दीप्ति? दीप्ति को ट्राई करने दीजिए। I don't know. I don't know. अच्छा, देखिए ये तो बड़ा आसान सा जवाब है सर, आई डोंट नो। क्यों आपको डोंट नो है? आपको नो होना चाहिए, शुड नो, KNOW, यू शुड नो। सोचिए, आराम से रिलैक्स करके देखिए, ये कौन सा टेंस है? ये है सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट है। Yes. इसमें अब आप सर मुझे एकदम से याद नहीं आता, तो बड़ा आसान है, Yes, sir. तुमने गाना गाया है, तुमने गाना गाया है, तब हो जाएगा वो। आप थोड़ा म्यूट पे रहिए एक बार दीप्ति, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप अनम्यूट कीजिएगा। तुमने गाना गाया है, यू हैव संग अ सॉन्ग, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, आप वर्तमान तक आते हो। पर तुमने गाना गाया, पास्ट में चले गए हम और उसमें एक्शन को खत्म कर दिया, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि ये है सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में सर ने सिखाया है कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, खत्म बात। तो यू हैव संग नहीं होगा और ना ही यू संग होगा, उत्तर होगा यू sang, you sang, exactly, you sang a song, you sang a song, ठीक है दीप्ति, you sang a song। Yes, sir. अरबाज कुछ कहना है आपको? नहीं, that's Arna's hand I think, yeah, yeah, so you sang a song। इसका नेगेटिव करिए दीप्ति। You didn't sing a song. You didn't, हाँ, you didn't sing a song, you didn't sing a song, तुमने गाना नहीं गाया, you didn't sing a song, perfect। अब इसका प्रश्न बनाइए दीप्ति। Are you? आर में कहाँ पहुंच गया? अब डिड से तो प्रश्न बनेगा, डिड से, हाँ, Did you sing? वेरी गुड। डिड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या मतलब है इसका दीप्ति? डिड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुमने गाना गाया है? हाँ, नहीं गाया है नहीं, क्या तुमने गाना गाया? क्या तुमने गाना गाया? Yes, sir. हाँ, कल की बात है ना, कल तुमने गाना गाया क्या? कल वहां तुमने पार्टी में गाना गाया? डिड यू सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे इन द पार्टी? अगर आप ये बोलते हो ना दीप्ति, क्या तुमने गाना गाया है, तो वो हो जाएगा हैव यू संग अ सॉन्ग, हैव यू संग अ सॉन्ग। समझ में आता है आपको दीप्ति? ठीक है। अब इसका नेगेटिव में प्रश्न बनाइए दीप्ति, डिड के साथ। तुमने गाना नहीं गाया क्या? तुमने गाना नहीं गाया कि तुमने गाना नहीं गाया क्या? Didn't you sing a song? Is that okay everyone? Didn't you sing a song? Yes, sir. Yes, sir. मैंने यही बोला था। अच्छा, ग्रेट। आप ओके हैं तो आई एम ओके, कोई बात नहीं। अगर आप ओके हैं तो आई एम ओके। डिडंट यू सिंग अ सॉन्ग, ये कैसी स्थिति हो सकती है दीप्ति? आपने किसी को पूछा, अरे कल तुमने पार्टी में गाना नहीं गाया क्या? डिडंट यू सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे इन द पार्टी? तो इस व्यक्ति ने कहा यस आई डिड सिंग अ सॉन्ग। याद है आपको? वो दो बातें बोल सकता है। क्या बोल सकता है अरबाज? यस आई sang a Yes, I song। did. हाँ, वो बोल सकता है पहली बात, यस आई sang a song। दूसरा बोल सकता है यस आई डिड, और तीसरा बोल सकता है आई डिड सिंग अ सॉन्ग। किसी को डाउट इन तीनों ऑप्शंस में से? No, sir. नो। यार ना बताइए, So when do we use why? when do we use which one? Why? Yeah. Why as Like in? why did sing a song? No, I didn't get your question. Why as in the question? Why? Yeah, why didn't we use why? Means why didn't we sing it?
See, when you use why, so that's a different question. Why didn't you sing the song? तुम इतना अच्छा गाती हो, तुम इतना अच्छा गाते हो. Why didn't you sing the song? So that can be like, just an expression. That can be just exclamation. Why didn't you sing the song? तुम्हें गाना चाहिए था. Why didn't you sing the song? Or there can also be a reason. तुमने गाना क्यों नहीं गाया कल? Why didn't you sing the song? Oh, I did not sing the song because I was tired. I didn't sing the song because I was not having. I was having a sore throat. मेरा गला खराब था. I was having a sore throat. तो उस केस में Arna, we expect an answer when someone asks you why, because. Why, because. Clear है? Yes, sir. ओके चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एक एक चांस सबको देते हैं फटाफट से. सो दीप्ति ने बोल दिया. कृष्णमन्यु फटाफट से आइए. मैंने पानी पिया. फटाफट बोलिए. Yes, sir. मैं मतलब हाँ I am drinking water. बेटा आई एम ड्रिंकिंग वाटर तो होता है मैं पानी पी रहा हूं. ये हमारा वाक्य नहीं है. हमें बोलना है मैंने पानी पिया. क्या बोलोगे आप? I drank water. Exactly, I drank water. I drank water. ये सिंपल पास्ट है. I drank water. Example. किसी को डाउट इसमें I drank water में? No, sir. तब इसमें M लगे ना M. बेटा I'm getting water. I'm getting water. I am drinking water सही वाक्य है पर यहाँ पे नहीं बैठेगा. I have drunk water भी सही वाक्य है लेकिन यहाँ नहीं बैठेगा. यहाँ क्या बैठेगा? मैंने पानी पिया. I drank water. I drank some water लिख लेते हैं. I drank some water. मैंने थोड़ा पानी पिया. I drank some water. Right? I drank some water. अभी क्लियर है? अब इसका नेगेटिव बनाओ कृष्णमन्यु. मैंने पानी नहीं पिया. So yes, sir. I drank. Doesn't. बेटा नहीं, didn't. डिड के साथ बनता है ना नेगेटिव. Yes, sir. सिंपल पास्ट का नेगेटिव डिड के साथ बनेगा. याद रखिए. सो आई डिडंट और ये ड्रैंक क्या बन जाएगा? ड्रिंक बन जाएगा. आई डिडंट ड्रिंक वाटर. फिर सम हट जाता है ना नेगेटिव के I अंदर. didn't drink water. हाँ आई डिडंट ड्रिंक वाटर. मैंने पानी नहीं पिया. आई डिडंट ड्रिंक वाटर. राइट? आई डिडंट ड्रिंक वाटर. और इसका प्रश्न बनाइए. क्विकली क्वेश्चन बनाइए. क्या मैंने पानी पिया? अपने इसे उल्टा बना सकते हैं. Didn't I? हाँ वो भी हो सकता है लेकिन वो होगा क्या मैंने पानी नहीं पिया. मैंने पानी नहीं पिया क्या? डिड नॉट या डिडंट. सो पहले पॉजिटिव बनाते हैं. डिड आई ड्रिंक वाटर. डिड आई ड्रिंक वाटर. क्या मैंने पानी पिया? क्या मैंने पानी नहीं पिया? डिडंट आई ड्रिंक वाटर. डिडंट आई ड्रिंक वाटर. जो भी पिया वो पानी तो था तो डिडंट आई ड्रिंक वाटर. क्लियर है सभी को? एनीवन? Yes, sir. चलिए Yes, sir. ओके फटाफट देखते हैं कौन लोग बच गए हैं. मानसी आप ट्राई कीजिए फटाफट से. नेक्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट वाला आपके लिए है तुमने मुझसे बात की. मानसी You have talking to me. बेटा यू के बाद हैव नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सा टेंस है? ये है हाँ. You were. यू के बाद सीधे हमारा सेकंड फॉर्म आ जाएगा इस क्रिया का. बात करना. बात करना मतलब टॉक. ठीक है? टॉक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? यू You talk. you talked to me. You talked to me. You talked to me. तुमने मुझसे बात की. You talked to me. ठीक है? यहां तक सभी की समझ में आ रहा है? दीप्ति कुछ Yes, sir. ठीक है? आप एक बात को गांठ बांध लीजिए कि जो या कोई कुछ कहना चाह रहा है. दीप्ति बताइए. Yes, sir. सर इसका भी कोई तरीका है कि मुझे ये पता चले कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करनी है या सेकंड फॉर्म यूज करनी है? देखिए इस वाले टेंस में कौन सी फॉर्म लगी? तो ये तो हमने प्रैक्टिस की है ना. ये तो हमने प्रैक्टिस की है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं तब हम बोलते हैं आई ईट. ठीक है? आई ईट. उसका नेगेटिव होता है. मुझे लगता है मैं आपको फटाफट एक बार मैं एक पिक्चर बना के आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो. एक बार ये समझ लेते हैं. उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. उसका सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. बट मैं आपको एक बार एक पूरा नटशेल में फटाफट से 2 मिनट के अंदर दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए. एक बार इनका सेंटेंस कंप्लीट करते हैं जो मानसी का था. यू टॉक टू मी. इसका नेगेटिव हो जाएगा यू
You didn't लगते ही क्या हो जाएगा, टॉक आ जाएगा, ठीक है, टॉक प्रेजेंट टेंस आ जाता है, हमारा मेन वर्ब आ जाता है, सॉरी प्रेजेंट टेंस नहीं, गलत बोल गया मैं, हमारा मेन वर्ब आ जाता है, यू डिडंट टॉक टू मी। और इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिड एनीवन, या डिड यू टॉक टू मी, Did you talk to me? हाँ तुमने मुझसे बात करी क्या, डिड यू टॉक टू मी, तुमने मुझसे बात करी क्या, तुमने मुझसे बात नहीं करी क्या, डिडंट यू टॉक टू मी। यहां तक बताइए किसी को डाउट अभी तक, No, sir. No, sir. अब नो तो बोलते हैं फिर आपको डाउट होता है और उसको आप रखते हैं, आपको उसको दूर करना। चलिए तो दीप्ति जी की रिक्वेस्ट पे फटाफट से थोड़ा सा आइडिया देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, देखते हैं। तो पहले सिंपल प्रेजेंट देखते हैं, आई ईट, ठीक है, आई ईट, आई नेगेटिव कर, आई डू ईट, ये भी याद है आपको, आई ईट और आई डू ईट, ठीक है एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. मैं खाता हूं, आई डू ईट, मैं खाता हूं, राइट, मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट, बिल्कुल सही है, आई डोंट ईट, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आई ईट, आई डू ईट, आई डोंट ईट। आई ईट का नेगेटिव क्या होगा, जल्दी बताइए, आई ईट का, I does not eat. Don't eat. I don't eat. Sorry, sir. दीप्ति जी आपकी तो मेरे को गड़बड़ पकड़ में आ गया, प्रैक्टिस नहीं करते हो बस, फिर आपको समय नहीं मिल रहा है। आई डोंट ईट, डज तो हम तब लगाएंगे जब ही के साथ आएगा, ही ईट्स, ही डज ईट, या फिर ही डजंट ईट। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को, हाँ अनम्यूट करके यस बोलिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, ही ईट्स, ही डज ईट, ही डजंट ईट, ओके। आई के ही के साथ चलते हैं, ही इज ईटिंग, और नेगेटिव ही इज नॉट ईटिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। Yes, sir. और इसका प्रश्न बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, इज ही ईटिंग, ठीक है, और इसका नेगेटिव करना होगा तो इज ही नॉट ईटिंग, क्या वो खा नहीं रहा क्या, इज ही नॉट ईटिंग, हाँ हैजंट कहां से आ गया बीच में, हैजंट कहां आया बीच, oh isn't, oh yeah I didn't hear you properly, isn't तो कहां गया isn't, is he yeah, is he not eating, yeah isn't he eating, very good, is he not eating को भी isn't बोल सकते हैं, isn't he eating, very good। चलिए so is he not eating, isn't he eating, यहां तक ठीक है, anyone कोई डाउट, दीप्ति, राजेश्वरी, क्लियर है, अरबाज समझ में आ रहा है सभी को, राइट ये है सिंपल प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हमारा एक्शन वर्तमान में आके खत्म हो गया है, ही हैज ईटन, ठीक है, ही हैज नॉट ईटन। प्रश्न, हैज ही ईटन, नेगेटिव, hasn't he eaten। यहां तक किसी को अगर डाउट है तो बताइए पहले। सर अब यहाँ पर आपने eaten use किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ मुझे eaten use करना है? अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि आपको eaten यूज करना है, ये निर्भर करेगा कि आप कौन सा वाक्य बोलना चाह रहे हैं। दीप्ति आप क्या बोलना चाह रहे हैं उस पर निर्भर करेगा ना। यहाँ पे हमने बोला अभी सुनिए, पहले मैं आपको एक और बनाता हूं आखिरी वाला सिंपल पास्ट, तब आपसे मैं चर्चा करता हूं वरना मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। आखिरी लिखता हूं मैं सिंपल पास्ट, सभी लोग कृपया ध्यान दीजिए। सिंपल पास्ट, ही एट उसने खाया, ही डिड नॉट ईट उसने नहीं खाया। डिड नॉट के साथ तो याद है ना सभी को कि हम प्रेजेंट टेंस वो मेन वर्ब लगाते हैं, ही डिड नॉट ईट। और फिर उसने खाया क्या, डिड ही ईट। और अंत में डिडंट ही ईट। पहले एक बार देख लीजिए यहां तक अगर आप संतुष्ट हैं क्या जो मैंने लिखा है। अरबाज सब ओके हैं। Yes, sir. अब दीप्ति जी का प्रश्न है, सर मैं कैसे इस बड़े से माया जाल में से निकल के बाहर आऊं और मैं समझूं कि भाई ये बोलूं कि ये बोलूं कि ये बोलूं कि ये बोलूं। ये प्रश्न है आपका दीप्ति। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका
सिंपल सा उत्तर है, आप क्या कहना चाह रहे हैं हिंदी में, उस पर आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए वो 3 बजे खाता है, ही ईट्स एट 3 o'clock, ठीक है। वो भी क्या कर रहा है, वो खा रहा है, ही इज ईटिंग, ठीक है। उसने खा लिया है, यस ही हैज ईटन, यस ही हैज ईटन, उसने खा लिया है। कल उसने खाया, हाँ कल उसने खाया, यस yesterday he ate, yes yesterday he ate। अब बताइए दीप्ति, is that clear everyone, anyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब आप दीप्ति, आपके मन में चल रहा होगा सर पढ़ा रहे तब तो समझ में आ रहा है, पर मैं जब खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ तब बड़ी दिक्कत आ रही है। तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही एक मैजिकल एक बात बताऊं, आप हर बात को अंग्रेजी में बोलिए। अब ये मैंने बात आपको पहले भी बोली थी, अभी फिर से रिपीट करता हूं, द मोर यू ट्रांसलेट थिंग्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ओनली देन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। आपने अपनी डॉक्टर को कहा, सुनो तुम बेटा तुमने काम कर लिया, बेटा तुमने काम कर लिया, यानी अभी तक का पूछूं, व्हाट्स योर डॉटर्स नेम दीप्ति? Hilor. Sorry? Hilor. Hilol. Hilor. Hilor. Oh, Hilor. Oh, that's a beautiful name, Hilor. Okay. So, Hilor, have you finished your work? Have you done your work? अब बताइए, इसमें आपने हिलोर से क्या पूछा कि काम कर लिया है ना, यहां तक वर्तमान में काम करा नहीं, काम कर लिया है, कर लिया है ना। So, have you finished your work, Hilor? Yes, Mama, I have finished my work. ये जवाब आएगा। समझ में आ रहा है आपको दीप्ति? और अगर आपको पूछना था, हिलोर कल पार्टी में गाना गाया क्या, कल तुमने पार्टी में गाना गाया, सो हिलोर डिड यू सिंग। अब देखिए, क्योंकि मेरे को क्या पूछना था, डिड यू, डिड कहां गया, यहां पे आ गया, डिड यू सिंग, क्योंकि मेरे को सिंपल पास्ट में जाना था, क्योंकि गाने गाने का जो एक्शन था ना दीप्ति, वो तो पास्ट में खत्म हो गया ना, कल की तो बात है। कल तुमने पार्टी में गाना गाया क्या, कल तुमने पार्टी में गाना गाया है तो नहीं बोलोगे ना आप दीप्ति, आप ये तो बोलोगे कल हिलोर तुमने पार्टी में गाना गाया क्या, कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं उधर थी और तुम उधर थे तो मुझे पता नहीं तुमने पार्टी में गाना गाया क्या। तो आपने पूछा, हिलोर डिड यू सिंग यस्टरडे इन द पार्टी? नो ममा आई डिड नॉट सिंग, नो ममा आई डिड नॉट सिंग। तो यहाँ पे चले गए हम, आई डिड नॉट सिंग, आई डिड नॉट सिंग, ही डिड नॉट ईट, उस तरीके से। या अगर हिलोर ने गाया होता तो वो क्या कहती, यस ममा आई, कोई भी क्या क्या कहा होता हिलोर ने, या ममा आई, एवरीवन, एनीवन? हाँ, वेरी गुड। एक हो सकता है उत्तर, यस ममा आई डिड सिंग, एक उत्तर हो सकता है आई सैंग, वेरी गुड। या अंत में जो दीप्ति कई बार बोलती है, यस ममा आई डिड, यस आई डिड। अब बताइए, तो अभी क्लियर है आपको दीप्ति? पक्का? तो मैं आपको बताऊं, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ और क्लियर हो जाएगा। थोड़ी नहीं, खूब सारी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है हम सबको। चलिए, so with that we have come to the end of our today's session. I'll try to send the PDF of this document to you all, and what you could do is that आप आगे बढ़िएगा, और जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस वगैरह दी हैं, जो हमारा आपको याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में कंटिन्यूअस वाला टेंस, उसको थोड़ा सा देखिएगा, टेंसेस को थोड़ा रिवाइज करिएगा, और कल हम जो हमारी फ्राइडे क्लास में एक बार टेंसेस को सारा खत्म कर लेंगे, ताकि वीकेंड पे आप जम के टेंसेस पे काम करें, और मंडे को जब हम मिलेंगे तो हम एक नया टॉपिक लेके आगे बढ़ेंगे। तो कल टेंसेस से हम पूरी मुक्ति पा जाएंगे। तो आपका काम ये रहेगा, आप सारे टेंसेस को रिवाइज कीजिएगा, और उसके बाद हम कल टेंसेस को कवर करके रैप अप कर लेंगे। इज दैट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, राइट? कल के बाद नो मोर टेंस, मतलब टेंस हम करते रहेंगे, बट क्लैरिटी रखिएगा अपने मन में कि हाँ सर अब मुझे याद आ गया, हाँ सर मैं समझ गई ना, योर क्लैरिटी बहुत स्पष्ट है। Practice is something that you have to do every now and then, every time. That's very, very important, right? All right. Do you have any questions for me? Anyone? Everyone? No, sir. No, sir. No questions. All right. So with that, we are wrapping the session up. I wish you all a great evening ahead. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you. Happy Teachers Day. Thank you. Thank you so much. I wish you all the same, because we all are learning from each other. Thank you. Thank you. And I wish everyone the same. Thank you.